بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 32 کی 22ویں آیت سے آیت نمبر 36 تک خدا کے کلام سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بڑا خوبصورت اقتباس, بڑی خوبصورت بات بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور وہ اسی رات اٹھا, ہمارے باپ یعقوب کی بات ہے, اور اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو ساتھ لے کر یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا, اور یعقوب اکیلا رہ گیا. اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس نے اس کی ران کے اندر کی طرف سے چھوا, اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی, اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤں پھٹ چلی. یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تب اس نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب. اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا. تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے. اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے اسے برکت دی, اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. یعقوب جس کا نام اسرائیل رکھا گیا, لکھا وہ اپنی دونوں بیویوں, اپنے دونوں لونڈیوں اور اپنے 11 بیٹوں کو لے کر اپنے سسر لابن کے ہاں سے اپنے باؤ اجداد کے وطن کی طرف واپس چلا. یعقوب کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو یعقوب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ان چیزوں کو ہاتھ ڈالا جو اس کی نہیں تھی. یہ یعقوب کے کریکٹر میں بات تھی کہ اس نے ہمیشہ انہی چیزوں پر ہاتھ ڈالا جو اس کی نہیں تھی. یہ اس کی فطرت میں بات شامل تھی. پیدا ہوا تو اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی ہوئی تھی, بڑا ہوا تو بھائی اس کے پاس آیا, بھوکا تھا, یعقوب کھانا بنا رہا تھا, بھائی نے کہا بھائی مجھے کھانا دے. یعقوب نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کھانا ضرور ملے گا اگر تو مجھے اپنے بڑا ہونے کا حق دے. عیساؤ سے کھانے کے عوض اس نے بڑا ہونے کا حق لیا. ایک بار اس نے ان چیزوں پر ہاتھ ڈالا جو اس کی نہیں تھی. وقت آیا کہ خاندانی طور پر بڑے پلوٹے ہونے کی برکتیں عیساؤ کو دی جائیں تو ماں کے ساتھ مل کر ایک بار پھر جھوٹ کا پلاٹ بنایا گیا. وجہ یہ تھی کہ اس لیے صرف یعقوب جھوٹ نہیں بولتا تھا, یعقوب کے دادا نے بھی جھوٹ بولا تھا. صرف یعقوب کے دادا نے جھوٹ نہیں بولا تھا, یعقوب کے ابو نے بھی جھوٹ بولا تھا. صرف یعقوب کے ابو نے نہیں جھوٹ بولا تھا, یعقوب کی امی نے بھی جھوٹ بولا. جھوٹ اس کے ڈی این اے میں شامل تھا, جھوٹ اس کی خاصیت میں شامل تھا. ماں کے ساتھ مل کر باپ کے سامنے جھوٹ بول کر برکتیں لے جانے کے لیے جو پلاٹ بنایا
चूंकि चुंदहा गई हुई थी, रोशनी कम थी, बेटे की कमर पर, जिस्म पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? कहता जी ईसाऊ। बाप कहता है तेरी आवाज से तो लगता है तू मुझे याकूब है, मगर जिस्म तेरा ईसाऊ की तरह है, क्योंकि उसके जिस्म पे बाल थे। जनाब ने बाप को धोखा देने के लिए हाथ पे खलड़ी पहन रखी थी बकरी की। बाप ने छुआ तो खलड़ी बाल नजर आए। एक बार फिर याकूब ने उन चीजों पर हाथ डाला जो उसकी अपनी नहीं थी। घर से भागा, अपने ससुर के यहां, अपने मामू के यहां चला गया। मामू के यहां जब पहुंचा तो एक बार फिर उसने उस चीज पर हाथ डाला जो उसकी नहीं थी। उसको अपने मामू की बेटी पसंद आ गई। कहता जी शादी कर देंगे आप? मामू कहते हैं जनाब अच्छा है अगर मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूं, मगर इसके लिए तुझे मेरी 7 साल खिदमत करनी पड़ेगी, भेड़े बकरियां चरानी पड़ेगी। 7 साल तक भेड़े और बकरियां चराने पर जब वो मुद्दत खत्म हुई तो बाइबल में लिखा है चूंकि राखल से वो दिली मोहब्बत करता था, इसलिए उसके लिए ये वक्त दिनों सा लगा। 7 साल कैसे गुजरे उसको पता ही नहीं चला। 7 साल गुजरने के बाद उसने अपने ससुर से कहा जनाब अब मेरी शादी कर दीजिए। बाप ने कहा जरूर। शादी कर दी गई। सुबह को उसे पता चला कि जो मेरी बीवी बनी है वो लिया है। लिया का मतलब है गजाल, गजाल का मतलब है हिरनी। मगर लिया के बारे में लिखा कि उसकी आंखें चुंदी थी। दूसरे लफ्जों में लिया इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर राखल चूंकि खूबसूरत थी इसलिए वो राखल को पसंद करता था। उसने अपने ससुर से कहा तूने मेरे साथ दगा किया, तूने मेरे साथ धोखा किया। वैसे इत्तेफाक देखिए याकूब का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है? क्या है? धोखा देने वाला। एक धोखा देने वाला दूसरे से कहे कि तूने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा है जब एक दगाबाज दूसरे से कहे कि मियां तू जो दगा कर रहे ना ये सही नहीं है। वो तो शुक्र है खुदा का कि लावन को उसकी करतूतों का नहीं पता था, वरना वो उसको 1 की 70 सुनाता। 10 बार लावन ने उसकी मजदूरी बदली। उसने कहा जी देखो हमारे यहां ये दस्तूर है कि बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं की जा सकती। अगर आप चाहते हो मेरी छोटी बेटी से शादी करना तो आपको 7 साल और भेड़े चरानी पड़ेगी। उसने वो शर्त मंजूर की और बाइबल में लिखा है इस्राएल बीवी के लिए गुलाम बना। कई दफा हम बीवियों के लिए गुलाम बनते हैं। अमूस की किताब में बीवियों पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए अमूस ने इस्राएली औरतों को बसन की गायें कहकर पुकारा है, जो अपने शोरों से कहती है लाओ लाओ लाओ, क्योंकि वो खाऊ है। सुकरान में लिखा इस्राएल बीवी के लिए गुलाम बना। 14 साल मजदूरी करने के बाद उसकी छोटी बेटी से भी शादी कर दी गई। एक बार फिर याकूब ने उन चीजों पर हाथ डाला जो उसकी नहीं थी। एक दिन उसके ससुर लावन ने उससे कहा कि चूंकि तूने मेरी बड़ी खिदमत की है तू मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो याकूब ने कहा कि मैं तेरी भेड़ बकरियों में कल जाऊंगा, फिरूंगा उनमें, जो उबलक किस्म की होंगी, जो धारीदार होंगी, जो काले रंग वाली बकरियां भेड़ें होंगी वो मेरी होंगी, बाकी तेरी होगी। और आइंदा भी जो बच्चे काले रंग के धारीदार और उबलक होंगे वो बच्चे मेरे होंगे, बाकी तेरे होंगे। तो खुदावंद ने मेरी मजदूरी यूं सेट कर दी है। उसको पता था कि रेवड़ों में ज्यादा भेड़ें ऐसी ही है। उसने क्या किया
اس نے چنار اور شتوت اور ایک اور درخت کی چھڑیاں لی, ان کے اوپر سے سکن کو اتارا اور پانی کے اندر گاڑا, ان کے اوپر اس نے کچھ کھودا, ان کو گنٹھیں بنائی, ان کی پانی کے اندر چھڑیاں لگائی. اب بھیڑیں اور بکریاں جب پانی پینے آتی تھی تو وہی وہ ساری مائیں بننے والی ہو جاتی تھی. لہذا اگلی دفعہ جب بھیڑ بکریوں نے بچے دیے تو وہ سارے بھاری دار کالے اور ابلے تھے, ساری بھیڑیں اس کی تھی. مگر یہ صرف ان بھیڑوں کے لیے کرتا تھا جو اس کی اپنی تھی, مگر جب اس کے سسر کی بھیڑیں جو کمزور تھی وہ پانی پینے کے لیے آتی تو وہ ساری چھڑیاں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا تھا. سو یعقوب نے ہمیشہ ان چیزوں پر ہاتھ ڈالا جو اس کی نہیں تھی. ہم ہمیشہ ان چیزوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری نہیں ہے. ہم ہمیشہ اس عزت کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری نہیں ہے. اور اب وقت آیا کہ اس نے اپنے سسر سے کہا, جی مجھے میرے وطن میں جانے دیجئے, میرے باؤ اجداد کے گھر میں جانے دیجئے. اس کے سسر نے تو اسے اجازت نہ دی, لہذا وہ اپنی دونوں بیویوں, لونڈیوں, 11 بیٹوں کو لے کر, اس وقت تک کبھی بنیامین پیدا نہیں ہوا تھا, اور لے کر وہ دریائے یردن پر, جس کو یبوک کی ندی بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر پہنچا. اب جیسے وہ وہاں پر پہنچا تو اس کو خبر ملی کہ تیرا بھائی عیسیٰ 400 آدمیوں کو لے کر تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. او مائی گاڈ, یہ بات اس کو دکھ دے گئی اور اس نے خداوند سے دعا کی. جو دعا اس نے خداوند سے کی وہ اسی باب میں 9ویں آیت سے شروع ہوتی ہے, 32ویں باب کی 9ویں آیت سے. یعقوب نے کہا, اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا, اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا, میں تیری رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں, کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا, اور اب ایسا ہوں کہ میرے پاس 2 غول ہیں. میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لے, کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں آ کر مجھے اور بچوں سمیت مار نہ ڈالے. اس نے دعا کی, دعا اس نے جو کی, اس نے کہا کہ اے خداوند مجھے میرے بھائی عیساؤ سے کیا کر بچا, کیونکہ میں نے اس سے ڈرتا ہوں. لہذا اس نے ایک اسٹریٹجی اپنائی. اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ اس نے 2 غول بنائے, ایک بیوی اور اس کی لونڈی کے بچے ایک غول میں, دوسری بیوی اس کی لونڈی کے بچے ایک غول میں. کچھ بھیڑیں اس طرف, کچھ بکریاں بیل اس طرف, کچھ نوکر چاکر بھیڑ بکرے اس طرف, دونوں کو ندی پار کروایا. اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ایک غول کو میرا بھائی مارے گا, ایک بیوی کے بچے مریں گے تو دوسرا غول بچ جائے گا. اور خود دریائے یردن کے اسی پار رہا. اس نے بڑی دعا کی, اس نے کہا خداوند دیکھ میں ایک لاٹھی لے کر یہاں آیا تھا, مگر اب میرے پاس 2 غول ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہاں پر آئے ہو آپ صرف اکیلے ہو, مگر آج جب آپ پاکستان جا رہے ہو یا جاتے ہو تو آپ کے ساتھ 4 لوگ اور آپ کے خاندان میں بھر چکے ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ صرف ادھار کی ٹکٹ لے کر آئے تھے, مگر اب وہاں آپ کے پاس 2 گھر ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ آئے تھے تو آپ کنگال تھے, کچھ نہیں تھا سوائے کپڑوں کے, مگر اب آپ کو خدا نے برکت دے رکھی ہے. اس نے کہا میں اس دریا کے پر لاٹھی لے کر آیا تھا, مگر اب میرے پاس 2 غول ہیں. عیساؤ نے دعا کی. دعا اس کی کیا تھی کہ مجھے میرے بھائی سے بچا.
रात का वक्त था, दुआ उसने खत्म की तो एक शख्स उसकी तरफ खड़ा हुआ आ रहा है, और आते ही बगैर बोले उसने उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। याकूब तो पहले ही अपने भाई से डरा हुआ था, वो सोचा कि मेरा भाई एसाऊ है जिसने मुझे पकड़ लिया है। उसने पूरी जान मारी और उस बंदे के साथ रेसलिंग करना शुरू कर दी। कहीं जाके उसको पता चला कि जो बंदा मेरे साथ लड़ रहा है ये कोई आम बंदा नहीं है। कहीं जाके उसको पता चला कि जिसके साथ मेरी कुश्ती और जोर आजमाई हो रही है ये कोई आम शख्स नहीं है। कौन था जिसके साथ वो लड़ रहा था? खुदा का फरिश्ता भी लिखा है, और आखिर में ये लिखा उसने फरिश्ते से जंग की, उसने फरिश्ते से लड़ाई की, लेकिन फिर ये भी लिखा उसने खुदा से जोर आजमाई की। सो दूसरे लफ्जों में खुदा उसके साथ जोर आजमाई कर रहा था। मसला क्या था? प्रॉब्लम याकूब का एसाऊ नहीं था। याकूब को एसाऊ से उतना खतरा नहीं था जितना खतरा उसको अपने आप से था। याकूब बजाते खुद अपने लिए बहुत बड़ा खतरा था। इतना ज्यादा खतरा एसाऊ उसके लिए नहीं था। जब उसने दुआ की, दूसरी तरफ खुदा ने एसाऊ को दिखाई देकर कहा, खबरदार अगर तूने मेरे बंदे को छुआ तो। एसाऊ डर गया। एसाऊ आया, उसने अपने भाई को हाथ नहीं लगाया, लेकिन यहां पर उसने दुआ की, याकूब ने मुझे मेरे भाई से बचा, और उसकी दुआ का जवाब क्या मिला कि एक बंदा सारी रात उससे कुश्ती करने के लिए आ गया। कई दफा हमारी दुआओं का जवाब हमारी एक्सपेक्टेशन के उल्ट होता है, और जो जवाब हमारी दुआ का खुदा हमें देता है, हम उस जवाब को कबूल करने की बजाय उस जवाब के साथ लड़ना शुरू करते हैं। हम उस जवाब के खिलाफ रेसलिंग शुरू करते हैं। हम उस जवाब को कबूल नहीं करना चाहते, हम उस जवाब को अपनाना नहीं चाहते। वजह क्या है? क्योंकि जवाब हमारी तवक्को, हमारी ख्वाहिश, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। आज हम में से बथेरे अपनी दुआओं के उस जवाब से मुजाहमत कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो जवाब खुदा ने उन्हें उनकी दुआओं का दिया है। क्योंकि वो ऐसा जवाब चाहते नहीं है, उन्हें ऐसा जवाब कबूल नहीं है, वो ऐसे जवाब की तवक्को नहीं करते। अब आप बताएं, सारी रात खुदा को याकूब के साथ जोर आजमाई करना पड़ी। क्यों? ताकि याकूब के अंदर से याकूब को निकाल सके, ताकि याकूब के अंदर से याकूब निकल सके। धोखेबाज से एक धोखेबाज निकल सके, एक फ्रेम देने वाले से फ्रेम देने वाला निकल सके। वैसे भी बागे अदन और बागे गतसमनी की कहानी बड़ी मिलती है। बागे अदन में खुदा ने आदम से कहा, तू अपने खून और पसीने की रोटी खाएगा। और बागे गतसमनी में जो हमारी जिंदगी की रोटी थी, उसका पसीना खून की बड़ी बूंदें बनकर निकल रखा था, और उसने कहा, खाओ मेरा बदन है, ये तुम्हारे लिए अबदी जिंदगी है, मैं रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। बागे अदन में खुदा ने हवा से कहा, तू दर्द के साथ बच्चे पैदा करेगी। और ये सारा दर्द बागे गतसमनी में हमारे यीशु मसीह ने ले लिया, और लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो अब नई मखलूक है। बागे अदन में और बागे गतसमनी में ज्यादा फर्क नहीं है। बागे गतसमनी का मतलब है ऑयल प्रेसिंग, वो जगह जहां पर अंगूरों को, जहां पर चीजों को निचोड़ के उनसे ऑयल निकाला जाता था। गतसमनी वो है जहां पर यीशु मसीह को निचोड़ा गया और उसका लहू उससे निकाला गया और मेरी और आपकी जिंदगी ठहरा। गोया अब जो यीशु मसीह में है वो बागे गतसमनी में यीशु मसीह के लहू और पसीने और कड़ी मेहनत के वसीले से नई मखलूक है।
दर्द सारे उसने सहे हैं और आज हम नए हैं। लिहाजा उस रात याकूब को निकालने के लिए खुदा को जोर आजमाई करनी पड़ी। जिस तरह मुझे और आपको नई मखलूक बनाने के लिए यीशु मसीह को बागे गतसमनी में सारी रात इब्लीस की तेज आंधियों का सामना करना पड़ा। और उस रात यीशु गोया एक सरकंडे की मानद था, एक दरख्त से टूटे हुए पत्ते की मानद था, और सरकंडा जिसे शैतानी आंधियां जमीन पर दे मारती थी। उस रोज याकूब को निकालने के लिए, एक दगाबाज से दगाबाज को निकालने के लिए खुदा को सारी रात मेहनत करनी पड़ी। और सच तो यह है, वो एक रात में उसका ऑपरेशन हुआ और वो याकूब से कुछ और बन गया। और हमारी जिंदगी में खुदा आज तक हमारे साथ जोर आजमाई कर रहा है, और हम इतने ज्यादा मजबूत हैं खुदा के मामले में, बस से बस नहीं होते, बदलने का नाम ही नहीं लेते। कितने लोग मोहम्मद अली बॉक्सर का नाम जानते हैं? मोहम्मद अली बॉक्सर जो था, काला था, उसकी एक स्ट्रेटजी थी। जब वो किसी के साथ लड़ता तो अपने मुखालिफ के साथ लड़ते वक्त वो एक स्ट्रेटजी उसने अपनाई हुई थी। उस स्ट्रेटजी का नाम है रोप अ डोप। स्ट्रेटजी में क्या होता था कि जब उसका मुखालिफ उसको मुक्के मार रहा होता था तो वो अपने चेहरे के आगे अपने बाजू करता और अपने आप को बचाता रहता और रस्सों के पीछे रहता। जब उसका मुखालिफ उसको मुक्के मार मार के इधर उधर थक जाता तो बाद में लोगों को पता चलता कि बस मोहम्मद अली अब हार गया, अभी गया, गिरने वाला है। लेकिन उसने अपनी कुव्वत संभाल के रखी होती थी, और जब मुखालिफ थकता तो वो फिर उस पर गालिब आता और एक ही बार में उसको नीचे गिरा के जंग कुछ जीत जाया करता था। ये उसकी रोप स्ट्रेटजी थी। खुदा कई दफा हमारे साथ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है। सारी रात खुदा याकूब से कुश्ती लड़ता रहा, जोर आजमाई करता रहा। जब याकूब पूरी ही तरह थक गया, पूरी तरह हार गया, पूरी तरह उसको यकीन हो गया कि मैं अब कहां हूं, मैं कौन हूं, तो खुदावंद ने याकूब से पूछा, उससे कहा कि मुझे जाने दे, पौ फट चली है। उसने कहा मैंने तुझे जाने नहीं देना। उसने कहा क्यों नहीं जाने देना, मुझे जाने दे। उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा पहले याकूब की फरिश्त में यह बात शामिल है कि वो उन चीजों पर हाथ डालता है जो उसकी नहीं है, वो अपनी ख्वाहिशों पर हाथ डालता है। मगर आज याकूब अपनी ख्वाहिश पर हाथ नहीं डाल रहा, वो अपनी जरूरत के मुवाफिक मांग रहा है। खुदावंद यीशु, खुदा उससे कहते हैं तेरा नाम क्या है। एक बार फिर खुदा उसको उसी मुकाम पर लाता है जहां से उसकी धोखे की आवाज हुई थी। जब उसके बाप ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, तो याकूब ने क्या कहा, मेरा नाम ईसाऊ है। और आज उसी मुकाम पर खुदा उसको खड़ा करके कहता है तेरा नाम क्या है, बस तू देख कहां से गिरा है, उठ, पहली सी मोहब्बत दिखा, पहले की तरह काम कर। खुदावंद उसी मुकाम पर लाता है जहां से हम गिरते हैं। खुदा उसी मुकाम पर लाए, उससे कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब। खुदा ने कहा आइंदा तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तूने आदमियों से भी जोर आजमाई की और तूने खुदा से भी जोर आजमाई की और तू गालिब हुआ। 24 साल पहले इसी नदी को एक धोखेबाज ने क्रॉस किया था। 24 साल बाद जब एक शख्स उसको क्रॉस कर रहा था तो वो धोखेबाज नहीं, वो शहजादा क्रॉस कर रहा था। खुदा हमारा डीएनए बदल देता है जब वो हमें चुन लेता है। खुदा हमारी सरिश्त बदल देता है जब वो हमें चुन लेता है। खुदा हमारा ज़हन बदल देता है जब वो हमें चुन लेता है। खुदा हमारी फितरत बदल देता है जब वो हमें चुन लेता है। ये हमारे खुदा का नाम है, ये हमारे खुदा की मोहब्बत है। इजाजत दें उसे, वो आपको याकूब से इस्राएल बनाए।